Hello. Hello, friends. Last time we discussed about types of bank account in business services. Introduction discuss हुआ था. Then after हमने banking services में discuss किया था. And then after we end up our discussion on types of bank accounts. उसमें multiple deposit account, fixed deposit and savings, current, etc. Now the next topic is about banking services. We are going to carry on the same particular topic. Banking services. Banking services में basic services we are going to discuss right now. बहुत सारी services banks जो है वो provide करते हैं over and above than the money transactions. अभी तो gold भी बेचते हैं एंड इंश्योरेंस भी है. अनदर थिंग इज वो डीमैट सर्विसेज भी बैंक में आ चुका है. नंबर ऑफ मैनी मोर लॉकर सर्विसेज एंड टैक्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं. सो ऑल दैट पर्टिकुलर सर्विसेज आर अंडर वन रूफ. बैंक सर्विसेज का पूरा डायनेमिक एनवायरनमेंट है. So far as your syllabus is concerned, we are just going to discuss the basic services provided by the banks. So जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, in that financial transaction there are the risk of theft, risk of misplace of finances, and sometimes what happened that people cannot even spare time to make this kind of transactions, and that is why business में जो है वो problems भी होते हैं. So that is why banks are providing financial services. This kind of services are provided by the bank which are trustworthy, 100% trustworthy. बैंक जो है वो आपका इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक भी नहीं करता. They are not even discuss your personal matters with others कि फला फला accounts में ये हुआ है. Is this clear? So whatever financial transactions is in your business, in that financial transactions bank supports and make it more effective, safety and precautionary जो है वो सब जो है वो बैंक देखता है. So by keeping that in view, bank services में basic जो है वो issue of bank draft. Issue of bank draft means all the banks are providing this service. ड्राफ्ट इश्यू करना इट मीन्स कि 100% सेफ्टी से पैसा जो है विदाउट एनी mistake or without even a single chance to do any kind of malpractices, we can say. So draft is the safest mode of making payment. किस तरह से? Say for example, X person को, कोई X person है, X person को मुझे 5 लाख रुपया पे करना है. I have to pay 5 lakh rupees to X person. Okay. अब in any particular bank, I will go to any particular bank. Say for example, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता हूँ. बैंक ऑफ बड़ौदा. I will ask them what are the charges to issue a draft of 5 lakh rupees. ये अमाउंट के ऊपर चार्ज होते हैं सभी बैंक्स के. अगर 100 अमाउंट का ड्राफ्ट अगर आपको निकलवाना है तो इतने चार्जेस है, 100 अमाउंट में इतने चार्जेस.
ऑल और दैट चार्जेस को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो करना हो पड़ता है, रिसिप्ट जो है वो फिलअप होता है. So by keeping that in view, I am going to fill up the receipt and I will demand a particular draft on the name of X person. तो वो X person के नेम का मुझे 5 लाख का ड्राफ्ट निकाल के देंगे. और वो पूरा कंप्यूटराइज प्रिंट होता है, so that no one can change the amount, no one can change even the name, date, कुछ भी चेंज कोई नहीं कर सकता. कंप्यूटराइज सिस्टम से ही वो प्रिंट होके ड्राफ्ट निकलता है. एंड एज सुन एज आई विल गेट दिस ड्राफ्ट, मैंने बैंक में 5 लाख रुपया दिया, तब मुझे ड्राफ्ट इनके नाम का ड्राफ्ट निकाल के देंगे. आई हैव टू पे 5 लाख रुपीज टू बैंक, तभी तो मुझे वो देंगे ना ड्राफ्ट. ड्राफ्ट इस तरह का होता है, चेक जैसा ही होता है. यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, का नाम, एक्स पर्सन, अमाउंट रुपीस, और फिर यहाँ पे डेट. इस तरह का ड्राफ्ट होता है. ओके, तो मैं 5 लाख रुपया और चार्ज जो है वो पे करूंगा बैंक को. बैंक विल गिव मी दिस डिमांड, दिस पर्टिकुलर डिमांड ड्राफ्ट ऑन द पर्सन, ऑन दिस पर्सन's नेम, एक्स पर्सन. और ये मैं सेफली, ये ड्राफ्ट जो है मैं विथ सेफ्टी इनको भेज दूंगा, एक्स पर्सन को हैंड ओवर कर दूंगा. व्हाट एक्स पर्सन विल डू, एक्स पर्सन जो है विल डिपॉजिट द ड्राफ्ट in a particular bank in which he has account. Say for example, अब इनका अकाउंट जो है वो SBI में है, तो SBI में जाएंगे, SBI में जाके अपने अकाउंट के जरिए जो है वो ये ड्राफ्ट जो है वो डिपॉजिट करेंगे. अब जैसे ये SBI के अकाउंट में इनका ड्राफ्ट डिपॉजिट हुआ, इमीडिएटली बैंक देखेंगे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ड्राफ्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ड्राफ्ट है. तो इमीडिएटली बैंक ऑफ बड़ौदा में SBI कांटेक्ट करके जो मैंने 5 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया था ये ड्राफ्ट के जरिए, वो 5 लाख रुपया SBI बैंक ऑफ बड़ौदा से कलेक्ट करके ये साहब के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. Then after X person can withdraw from SBI, खुद के अकाउंट में से वो 5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता है. Is this clear? This is what the transactions are. चेक में भी ऐसा ही ट्रांजेक्शन होता है. ओके, नेक्स्ट इज बैंकर्स चेक. देखो ये बैंकर्स चेक जो है वो वेरी कॉमन है हमारे, जिस तरह से as we are doing transactions in draft and check, likewise one bank will make the transaction with the other bank with the safety. It's very common to understand. yes, कोई deep transaction भी नहीं है, लेकिन ये बैंकर्स चेक जो है उसमें क्या है, in a particular check, if I am going to draw a check to for making a payment on the name of another particular party, then I will make a sign. मेरी साइन से वो मेरा चेक पास होगा. लेकिन बैंकर्स चेक जो है that will be signed by one authority appointed in the bank. उनके साइन से ही वो चेक जो है वो क्लियर होता है. One bank will make transaction with the other bank. ओके, बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन जो होता है दैट इज बैंकर्स चेक, इसीलिए इसको बैंकर्स चेक ऐसा बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज, ये दो हो गया, इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक. देन चेक फैसिलिटी. चेक फैसिलिटी जो है तो उसमें दो तरह के चेक जो है वो होते हैं. issue of check
एक तो क्रॉस चेक होता है एंड दूसरा जो है वो बेरर चेक। तो उसमें जो है वो सेल्फ का चेक भी कहते हैं इसको। मीन्स व्हाट? क्रॉस चेक मीन्स व्हाट? क्रॉस चेक यानी कि से फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एक्स पर्सन। एक्स पर्सन के नाम पे मैंने चेक लिखा है, मैं उनको चेक से पेमेंट कर रहा हूँ। ड्राफ्ट में क्या था? आई गोइंग टू द बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ से पैसा दे के मैंने ड्राफ्ट निकलवाया था। यहाँ पे क्या है? आई एम हैविंग अकाउंट विथ इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का चेक बुक मेरे पास है। आई हैव द चेक बुक। I am just writing name of X person over here. Will write the amount, there is date, and I will make sign cross check or account pay only. Cross check को account pay only भी बोलते हैं। इस तरह का साइन अगर होगा, क्रॉस साइन होगा, it means that X person can withdraw money through the bank. वो उसके बैंक के अकाउंट में ये चेक डालेगा, then only उसके बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा and then after he can withdraw. Is this clear? ड्राफ्ट के जैसा ही, लेकिन सेफ, 100% सेफ्टी। ये मैं उसको दे दूंगा। I will hand over directly this check, cross check to X person. बैंक में जाने की कोई झंझट नहीं है, ड्राफ्ट जैसा नहीं है। ओके? If X person misplaced this check, अगर ये मिसप्लेस हो जाता है चेक, then there is no tension. मैं मेरी सेफ्टी के लिए मेरी बैंक में जाके इसका स्टॉप पेमेंट करवा सकता हूँ। ओके? तो ये नंबर, यहाँ पे नंबर होते हैं चेक के, तो वो जो है वो डायरेक्टली स्टॉप पेमेंट हो जाएगा नंबर के जरिए। और कोई जो है वो ये चेक यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ये अकाउंट पे ही ओनली है। इसके अकाउंट के जरिए जगह एक्स पर्सन इंडसइंड बैंक में जाके बोलेंगे कि भाई मुझे ये आपके अकाउंट होल्डर ने पैसा, वो चेक दिया है, आप मुझे पैसा दो। इमीडिएटली बोलेगा सॉरी, यू मे कम थ्रू योर बैंक। आप आपकी बैंक में जाके जो भी जहाँ पे भी अकाउंट है वहाँ उस बैंक में जाके ये चेक को वहाँ पे क्रेडिट करो, डिपॉजिट करो, and that bank will come to us. We will hand over that money to them and they will make the credit in your account and then after you can withdraw from your bank only. This is what the transaction of cross check. Okay. Now bearer check में क्या है? Very simple. Bearer check जो है बेरर चेक में सिंपल ये चेक ही होता है, इंडसइंड बैंक का चेक है। अगर मैं सेल्फ लिख देता हूँ, सेल्फ लिख के मैंने एक्स पर्सन को हैंड ओवर कर दिया कि चलो 50,000 का सेल्फ का चेक, एंड इफ ही मिसप्लेस दिस चेक, अगर ये चेक उनसे मिसप्लेस हो जाता है बेरर चेक, तो क्या जिनके भी हाथ में ये लगा है, ओके, वो जाके पैसा विड्रॉ कर सकता है। समझ में? दिस इज द रिस्क, इसमें ये रिस्क है। अनदर थिंग इज व्हाट, रिस्क के सामने दूसरा फैसिलिटी। से फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन को ये दिया टू एक्स पर्सन, ओके, 50,000 रुपीज। ओके, नाउ X person wants to make payment of the same amount to Y person. Y को भी ये X का लायबिलिटी है कि भाई Y को भी पेमेंट करना है। ओके, तो सेम चेक, ये 50,000 का चेक जो है वो Y पर्सन को दे सकता है। ये ले लो, तुम जाके विड्रॉ कर लेना, आपका पेमेंट हो गया, बात खत्म। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये दूसरे के हाथ में आएगा तो
माल प्रैक्टिस हो सकता है। उनको पता लगे उनसे पहले अगर विड्रॉ हो गया यानी कि तो प्रॉब्लम हो सकता है। उनको जैसे ही वो मिसप्लेस हुआ और उनको पता लगे कि कहाँ गया चेक, एंड इमीडिएटली ही मेक अ कांटेक्ट विद द बैंक एंड इमीडिएटली दे कैन they can stop the payment, then it is okay. Is this clear? So this is what the transactions and process are. The process जानना बहुत जरूरी है. These are the check facility. Then RTGS. The full form of RTGS is real time gross settlement. And ये NEFT है. NEFT National Electronic Fund Transfers. Okay. RTGS and NEFT इसमें जो है वो सिमिलरिटी है थोड़ा, but still there is a difference in the amount. RTGS में 2 लाख रुपीस का जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. एंड NEFT जो है वो जनरली ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन आर यूजिंग द सिस्टम इज NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम कितना भी आप ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो. मिनिमम 50,000 से भी कम का अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो NEFT में. एंड RTGS system is the fastest possible transaction of draft. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्राफ्ट है, मुझे पंजाब भेजना है, पंजाब को ही मेरा जो है वो कस्टमर जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज होता है, तो आई हैव टू मेक द पेमेंट थ्रू द ड्राफ्ट. और ड्राफ्ट में निकालूंगा, यहाँ से ड्राफ्ट निकलवाऊंगा, देन आफ्टर मैं कुरियर में भेजूंगा. आई विल सेंड इट थ्रू द कुरियर. देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर पर्सन विल हैंड ओवर. उसके बाद जो है वो बीच में छुट्टियाँ आएगी बैंक की, तो फिर उसके अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगा. देन आफ्टर उसका बैंक यहाँ पे बैंक पे ट्रांजेक्शन करके यहाँ से पैसा जाके उसके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होगा. सो इट विल टेक 15 days यू नो समटाइम्स. सो इससे बेहतर क्या है RTGS सिस्टम. उसका अकाउंट नंबर मेरे पास है, अकाउंट नंबर में कौन से नाम पे है वो मेरे पास है, उसने व्हाट्सएप कर दिया. आई एम डायरेक्टली जस्ट गो टू द बैंक, उसके बैंक में जाके मैं पेमेंट कर देता हूँ. विद इन 15 minutes ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द पंजाब. जो काम 15 दिन में होता है वो काम 15 मिनट में हो रहा है. यू जस्ट इमेजिन, दैट इज द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. मैंने जितना पैसा यहाँ पे डाला उतना ही पैसा वहां पे उनको मिलेगा. Is it clear? So this is what the टेक्नोलॉजी बैंक जो है, बैंक क्या है, बैंक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट पे, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है सेफ्टी का, देन बैंक को खुद को भी बेनिफिट मिलता है, एंड इकोनॉमी को भी बेनिफिट जो है वो इसका होगा. एंड the value for the minimum value for the transaction is 2 lakh, and over and above that we can use. And NEFT National Electronic Fund Transfer जो है उसका क्या है कि भाई से फॉर एग्जांपल मेरा इंडिविजुअल फर्म, anyone can use this particular system. 5,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपीज़ का कोई अकाउंट है तो वो भी ट्रांसफ़र होता है. अनदर थिंग इज़ व्हाट NEFT से भी ज़्यादा आज बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप डिस्कस कर लेता हूँ. थ्रू दी मोबाइल ऐप ऑल्सो यू कैन मेक द ट्रांजेक्शन. ओके, तो ये NEFT का ही पार्ट है. UPI एंड Paytm and Google Pay, you know, all this. Immediately it will make the payment in your account through a particular system. So अगर से फॉर एग्जांपल वो इसमें क्या था, सामने वाले का अकाउंट जिस बैंक में है, I have to go and make a credit in the same branch. Say for example, if that particular person is having
अकाउंट विद द SBI, तो मुझे SBI के ब्रांच में जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या ऐप के जरिए क्या हुआ, कोई भी बैंक में से कोई भी बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ओके, दिस इज द एडवांस सिस्टम, ये एडवांस सिस्टम आ गया है। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू अ पर्टिकुलर पार्टी, ट्रेडर, जिनका हर रोज का ट्रांजैक्शन होता है, एंड दे वांट सम मनी to meet the cash crisis. So at that time they can withdraw, they are allowed to get more money from the bank, and bank जो है उनको limit दे देता है that you can withdraw any time till up to 5 lakh rupees from the bank, from your account, वो उसका limit ही set होगा। एंड जितना वो उनको फिर लेना पड़ता है, उतना जितना अमाउंट है उतना वो विड्रॉ करते हैं, एंड उसके अगेंस्ट में उनको चार्ज पे करना पड़ता है, दे हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट। ओके, दिस इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में क्या है, द क्रेडिट इज गिवन एज पर द क्रेडिट वर्ड। क्रेडिट मीन्स की वैल्यू, आपका रेप्यूटेशन बैंक के साथ कितना है। हर रोज का अगर ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा होता है करंट अकाउंट में, then immediately bank will give you the credit for 5 lakh rupees, 6 lakh rupees, 10 lakh rupees. 10 lakh rupees का लिमिट है, you can use, you are using just 5 lakh rupees, तो आपको 5 लाख के ऊपर चार्ज देना है, बाकी का अमाउंट के ऊपर चार्ज नहीं देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट में पूरा का पूरा आप यूज करते हो, वेदर इन कैश क्रेडिट ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। वो तो आपको दे दिया है 10 लाख तक का कैश क्रेडिट। इज इट क्लियर? देन आफ्टर ई बैंकिंग, ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग। अब तो जितने भी बैंक्स है, ऑल द बैंक्स आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन एप्स, यू नो, एप्स के जरिए ही जो है वो आपका बैंक का स्टेटमेंट निकलता है, एंड वॉट एवर लोन you borrowed from the particular bank, all the statements, how much amount is left to pay, everything you can check through the app. आपको बैंक ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। Okay. So this is the e-banking, electronic banking, electronic system. स्मार्टफोन आने से बैंकिंग का पूरा रोल जो है वो बैंक का चेंज हो चुका है। नो, सो बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? सेफ्टी, लेस टाइम कंज्यूमिंग, देन बैंक से डायरेक्टली टच रह सकते हैं, वॉट एवर प्रॉब्लम दे हैव इमीडिएटली दे कैन जस्ट गिव अ कॉल टू द बैंक एंड दे कैन मीट विद द सॉल्यूशन। ओके, देन बेनिफिट्स टू द बैंक्स, लीस्ट पॉसिबल स्टाफ से बहुत सारे काम जो है वो निपटा सकते हैं। First and foremost, the benefit banks are getting. Another thing is what that कि कोई भी क्लार्क को कस्टमर का हेडेक, कस्टमर का डेटा नहीं रखना पड़ता है। एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड, डेटा स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर। वो तो पहले तो क्या था, कस्टमर का डेटा जो है वो बैंक को रखना पड़ता है, बैंक जो है वो फिर बुक निकाल के फिर देखते थे। सो लाइकवाइज एवरी काइंड ऑफ कम्बरसम इज रन अवे। बैंक जो है यहाँ पे फ्री होके जो है वो काम ले सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो बैंक को मिलता है। अनदर थिंग इज व्हाट, कस्टमर्स आर टेक्नो कॉन्शियस। मोस्ट ऑफ द काम अगर कस्टमर को सिस्टम मिलेगा, then immediately through the particular system customers are educated, immediately they will make the transaction. In that system if they have problem, then only they will come to the bank. तो बैंक में unnecessary rush ही नहीं होगा। Is it clear? These are the benefits
we discuss. Okay, so now we end up our discussion at this particular point, and hope you all are fine. Take care of yourself